as gonads. Primary sex organs are known as gonads. In case of male, testes are the gonads, which are the primary sex organs. And if we talk about females, ovaries are the gonads. So in males, there are two testes, and in case of female, there are two ovaries present in the reproductive system. So now, if we talk about the hormones which are produced by these gonads, gonads are also considered to for the formation of sex hormones. If we talk about testosterone, testosterone is a male sex hormone produced by testes. If we talk about estrogen and progesterone, these are the two sex hormones which are produced by ova. ठीक है जी, ये जो ओवरीज होती हैं ये दो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. So let's move forward with this, beta. Now let's talk about male reproductive system first. Then we will talk about female reproductive system. Then the process of fertilization and fetus formation, embryo development, so on and so forth. That is what in this chapter we are going to study about. Now, in case of male reproductive system is located in the pelvis region. Firstly, the pelvis region, which is lower to abdomen. Okay, so lower to abdominal region is known as pelvis region, where male reproductive organ is located, and male reproductive organ consists of testis along with accessory glands, or ducts, and external genitalia. So there are three, you can say three or four parts of male reproductive system. Firstly, it has testis, then accessory ducts or glands, and then external genitalia. So let's talk about primary reproductive organ, testis. Testes are the primary reproductive organ which is situated outside the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होते हैं बेटा टेस्टिस जो होते हैं इन केस ऑफ मेल्स. ठीक है, टेस्टिस आर accommodated in a pouch like structure called scrotum. So scrotum is a specialized sac-like structure which consists of testicles, which consist of testes. So what are the necessity for the scrotum? Scrotum की जरूरत क्या थी बेटा हमको? Scrotum की जरूरत ये है कि the formation of sperms, ये कहाँ पर होते हैं? It occurs inside the testis. Testis के अंदर sperms की प्रोडक्शन होती है, एंड स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, तब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है जी, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, और स्क्रोटम जो होता है वो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. So it provides the testis with the fall of 2 to 2.5 degrees Celsius temperature, which lower than the normal body temperature. ठीक है, which is necessary for the process of sperm formation. And the process of sperm formation is also known as spermatogenesis, the formation of sperm. If we break this word spermatogenesis, spermato means sperm, genesis means production. The production of sperm is known as spermatogenesis. It is as simple as that. So there is a abnormality called, or it is also a disease, you can say, which is known as cryptokidism. Cryptokidism क्या होता है? It is a failure of testis to descend into the scrotal sac. When testis, जो testis होते हैं बेटा वो scrotum तक आए ही ना, वो testis जो body में ही रह जाएं, scrotum में ना आए. This disease is known as cryptokidism. ये MCQ के लिए एक important question था बेटा, इसलिए मैंने notes में डाला. चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा accessory organs के बारे में. accessory organs के बारे में तो सबसे पहला जो accessory organ है, if we look at the diagram के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो accessory organ हमको देखने को मिलता है, देखिए ये है बेटा हमारे पास testis. This region is testis, and testis के ऊपर there are
there is a layer of tissue which is known as epididymis. Epididymis. So epididymis is the first accessory tube you can say. So epididymis क्या होती है बेटा, एक ये लॉन्ग और क्वाइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है, जो दोनों ही टेस्टिस के बैक साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, दोनों ही टेस्टिस की बैक साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। और एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्स स्पर्म सेल्स, ठीक है जी। ये पहली बात, तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है। दूसरी बात, ये स्पर्म सेल की ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, ठीक है जी। इट ब्रिंग्स स्पर्म टू मैच्योरिटी, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ठीक है जी। जो स्पर्म्स होते हैं बेटा, अब हम लोग ध्यान देंगे, आपको मैं यहाँ से समझेंगे इस डायग्राम से। तो बेटा लुक एट द कर्सर प्लीज। सो दिस इज ऑन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमें पता है कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है। स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद जो स्पर्म बनेंगे, दो स्पर्म्स कैन बी स्टोर्ड इन एपिडिडाइमस लेयर। This epididymis layer deals with the storage of sperm as well as the transportation of sperm. So if the sperm is required by that male, तो स्पर्म कहाँ से ट्रेवल करेगा? वो एपिडिडाइमस से निकलेगा और इस ट्यूब से मूव होना शुरू हो जाएगा। दिस ट्यूब इज नोन एज वास डेफरेंस। ओके, दिस ट्यूब इज नोन एज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इज अ ट्यूब which is connected with epididymis and epididymis is connected with testis. ये क्लियर है इस डायग्राम से? ओके, सो वास डेफरेंस स्पर्म को कहाँ लेकर के जाती है? ठीक है जी, ये लेकर के जाएगी बेटा यहाँ पर, विच इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं साइड में ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मैं इन सभी के फंक्शंस भी डिटेल में कराऊंगा आपको, लेकिन एक बार आपको लोकेशंस क्लियर हो जाएं प्लीज, ठीक है। तो बेटा ये जो ग्रीन वाले हैं ये हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी स्पर्म की मैच्योरिटी में बड़े सिग्निफिकेंट हैं। आफ्टरवर्ड्स जो स्पर्म है वो आगे बढ़ते हैं, और आप देख रहे हो ये साइड में भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड बल्बोयूरेथल ग्लैंड। दे आर नोन एज बल्बोयूरेथल ग्लैंड, जो साइड में दिख रहे हैं बेटा आपको लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में जो emerging structures हैं, these two emerging structures are known as bulbourethral glands. ओके, सो बल्बोयूरेथल ग्लैंड्स के बाद जो स्पर्म्स है वो कहाँ आ जाएंगे? फिर वो आ जाएंगे यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यूरिथ्रा इज अ ट्यूब विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पीनिस। ओके, सो यूरिथ्रा इज यूरिथ्रा के बारे में बेटा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। यूरिथ्रा से फिर वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेल आउट हो जाएंगे। मेल जो पेनिस पार्ट है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहां से वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इन केस ऑफ मेल्स यूरिथ्रा इज द ओनली ओपनिंग फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन। यूरिन को एक्सपेल आउट करने के लिए एंड स्पर्म्स को इजैकुलेट करने के लिए, ठीक है। स्पर्म्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इजैकुलेट। इजैकुलेट का मींस बाहर निकाल देना, ठीक है। यूरिन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं एक्सपल्शन, ठीक है जी। ओके, तो यूरिन स्पर्म्स के लिए इजैकुलेट वर्ड भी इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इट हैपेंस ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो इजैकुलेट इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है जी। तो स्पर्म्स के लिए हमेशा वर्ड इजैकुलेट यूज करना है बेटा हमने। फॉर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म यूरिथ्रा, यूरेथ्रा से होगा स्पर्म इजैकुलेशन, एंड एक्सपल्शन ऑफ यूरिन ये भी कहां से होगी? यूरिथ्रा से ही होने वाली है। ओके, अब एक और बात समझते हैं कि दोनों अगर एक टाइम पे रिलीज हो तो क्या हो? ऐसा नहीं होता है बेटा। एक टाइम पे या तो स्पर्म ही इजैकुलेट हो रहे होंगे या यूरिन ही एक्सपेल आउट हो रहा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, मेल कैन इजैकुलेट स्पर्म और पास यूरिन, ठीक है जी। दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे होगा, दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है जी। ओके, ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल कैन नॉट पास यूरिन, ओके, बट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दीज थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। वहां पर हमको ये चीज देखने को मिलेगी, देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर द रिलीज ऑफ egg and for the release of urine, ठीक है। there are two different openings for that. So in case of female the story is different. In case of male the story is this which I have told to you, so focus on that beta.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद वास डेफरेंस. सो वास डेफरेंस की कहानी क्या है कि वास डेफरेंस ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा. वास डेफरेंस क्या है? ट्यूब है जो कि स्पर्म को पास करती है. कहाँ तक लेकर जाते हैं? यूरेथ्रा तक लेकर के जाती है. ठीक है. ओके. यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिन को और स्पर्म को दोनों को ही बॉडी के आउटसाइड पास करवा देती है, निकाल देती है. ठीक है जी. तो हम आगे बढ़ते हैं. बेटा जो अगला डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें डिटेलिंग ज्यादा है. मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा सारी बातें. तो यूरेथ्रा के बारे में एक बार हम देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो एक बार फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर. ओके. तो बेटा यूरेथ्रा, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर आउटसाइड द बॉडी. ठीक है जी. आप लोग यहाँ इस डायग्राम के अंदर फोकस कीजिए, जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा. दिस पार्ट इज दिस पार्ट. ठीक है जी. ये जो आपको दिख रहा है, दिस ब्राउन वन, अपर रीजन जो है, ठीक है, ये पीछे तक है काफी. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. सो यूरेथ्रा इज कनेक्टेड विद यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो, and as well as urethra is connected with this vas deferens also. ठीक है जी. यूरिन कहाँ से आएगा? यूरिनरी ब्लैडर से आएगा. एंड स्पर्म्स कहाँ से आएंगे? वास डेफरेंस से आ रहे हैं. ऑफ कोर्स वास डेफरेंस को कहाँ से मिल रहे हैं? एपिडिडाइमिस से. और एपिडिडाइमिस को कहाँ से मिल रहे हैं? टेस्टिस से मिल रहे हैं. चलिए, ये बात हमें पता है. तो इन केस ऑफ स्पर्म, in case of human beings, if we talk about males specifically, the function of ejaculating semen, अब अच्छा जो sperms होते हैं उनको semen भी बोला जाता है. ठीक है जी. द फंक्शन ऑफ इजैकुलेटिंग सीमेन व्हेन द मैन रीचेस ऑर्गेज्म. सो बेटा अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो मेल यूरेथ्रा से उसी टाइम पर रिलीज होते हैं जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक टाइम आता है व्हेन द मेल इज एट द पीक ऑफ इट्स प्लेजर, यू कैन से, और व्हेन द स्पर्म्स आर रेडी टू एक्सपेल आउट. ठीक है. दैट टाइम इज नोन एज, दैट short period of time is process is known as orgasm, when the male is sexually very aroused. ठीक है. and when the male is indulges in a sexual activity, उस टाइम पर क्या होगा? जब जो स्पर्म है वो इजैकुलेट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेज्म बोल रहे हैं. एंड ऑर्गेज्म इज म्यूचुअल टू बोथ मेल एंड फीमेल. फीमेल्स के अंदर भी ऑर्गेज्म होता है, मेल्स के अंदर भी होता है. एंड जो हमारे पास यहाँ पर हम अगली बात करने वाले हैं बेटा, उसके ऊपर फोकस करते हैं आप. नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल. अच्छा, उससे पहले हम लोग, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और बताना चाहूंगा इसके बारे में. जो सेमिनल वेसिकल्स हैं हमारे पास, वो क्या चीज है? यहाँ देखेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट. ओके. आई होप आपने अब तक तो देख लिया होगा डायग्राम. एंड दिस रीजन इज सेमिनल वेसिकल रीजन. आप देख सकते हैं. ओके. सो सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है? सेमिनल वेस्ट, अब देखो समझना बेटा एक बात को, कर्सर पे फोकस करना जरा. यहाँ पर टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस हुए? स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए. जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो स्टोर कहाँ हो गए? एपिडिडाइमस के अंदर. अगर जरूरत पड़ी, अगर ये मेल किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, उस टाइम पर क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमस से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वास डेफरन के अंदर जाएंगे. ठीक है. वास डेफरन का दूसरा नाम डक्टस डेफरेंस भी है. ठीक है जी. ओके. वास डेफरन से होते हुए ये कहाँ पहुंचेंगे हमारे पास? ये पहुंच जाएंगे इस कैविटी के अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर. ठीक है. सेमिनल वेसिकल्स. नाउ दिस सेमिनल वेसिकल ये क्या करती है? ये उन स्पर्म्स को एक फ्लूइड दे देती है. ठीक है. उन स्पर्म को क्या दे देती है? फ्लूइड दे देती है. दैट फ्लूइड इज वेरी रिच इन शुगर. ठीक है जी. फ्रक्टोज होता है उसके अंदर. फ्रक्टोज इज अ स्वीट शुगर, वी ऑल नो अबाउट दैट. सो वो क्या दे देती? सेमिनल वेसिकल्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड स्पर्म्स विद फ्रक्टोज शुगर. What is the function of fructose sugar? What is the significance of doing this process? Because fructose is a very complex carbohydrate, we know about that. It is a disaccharide, of course. So upon respiration, जब क्या होगा? जो स्पर्म सेल्स हैं, बेसिकली है तो वो भी सेल्स ही हैं, वो फ्रक्टोज को एज अ न्यूट्रिशन जो है वो यूज करेंगे. ठीक है. और फ्रक्टोज की ब्रेकडाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करेंगे. तो फ्रक्टोज एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स. And this fructose is provided by seminal vesicle, of course.
ठीक है जी। तो जो ये रीजन मैंने ब्लू किया हुआ है बेटा सेमिनल वेसिकल के अंदर, आप एक लाइन को एक बार पढ़ लीजिए। द फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल मेक्स अप मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मैंस इजैकुलेटरी फ्लूइड। इजैकुलेटरी फ्लूइड के अंदर क्या हो, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजैकुलेटरी फ्लूइड एंड स्पर्म? बेटा ejaculatory fluid is a total fluid which comes out after orgasm। जो मेल जो पेनिस है उसके बाहर जो फ्लूइड निकलता है अपॉन ऑर्गेज्म, दैट इज कॉल्ड ejaculatory fluid। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ejaculatory fluid एंड sperm? ejaculatory fluid consists of the, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो कि स्पर्म्स को क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर आल्सो, ठीक है जी, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इजैकुलेटरी फ्लूइड में स्पर्म्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है जी। और जो स्पर्म का डायग्राम है वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। Okay, so now let's talk about prostate gland. Now, prostate gland has a very important function. Prostate gland nourishes the sperm. Prostate glands helps in maturing the sperm. ठीक है जी, ये sperm को mature करने के लिए help करता है। Prostate gland is very important gland, of course, and it is a walnut-sized structure located below the urinary bladder. Now you can see in this picture, बेटा, this ये जो part है, ये जो part है वॉलनट, जो वॉलनट शेप का, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको बल्बो यूरिथल ग्लैंड्स के बारे में बताया था, जो ये साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है, आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहे होंगे। दीज आर द बल्बो यूरिथल ग्लैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बल्बो यूरिथल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरिथल ग्लैंड जो होता है, लेट्स टॉक, अगर कोई मेल जो है वो किसी इंटरकोर्स में है किसी फीमेल के साथ, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, जो स्पर्म रिलीज होने से पहले, स्पर्म रिलीज होने से पहले जो बल्बो यूरिथल ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर देता है, किसके अंदर, जो यूरिथ्रा है उसके अंदर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, और स्पर्म को एसिडिक मीडियम अगर मिल जाए तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है जी। स्पर्म्स को अगर एसिडिक मीडियम आप दे दोगे तो स्पर्म एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्पर्म नीड न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम फॉर द प्रॉपर मूवमेंट एंड फॉर अ हेल्दी नरिशमेंट, ठीक है जी। तो बल्बो यूरिथल ग्लैंड का क्या काम है? पहले तो बल्बो यूरिथल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो क्या कर देती हैं, वो यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सेकेंडली, it releases a fluid which acts as a lubricant। लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या होगा? लुब्रिकेंट जो है वो बेसिकली सिक्रीशन ही है बल्बो यूरिथल ग्लैंड की, जो कि यूरिथ्रा से बाहर एक्सपेल आउट होती जाएगी, विच कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेंट फॉर द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा इस चीज को लेकर के। चलिए जी, बल्बो यूरिथल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो हमने देख लिया, लुब्रिकेट द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट कर देता है। अच्छा, लुब्रिकेट कैसे? जो जो है हमारे पास यूरेथ्रा है, उसके अंदर जो स्पर्म्स है वो इजीली क्या कर सके, फ्लोट कर सके, इजीली मूव कर सके। यूरेथ्रा के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसको इजी बनाता है मूवमेंट को बल्बो यूरिथल ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है। और याद रहे, बल्बो यूरिथल ग्लैंड अपना काम स्पर्म्स के आने से पहले ही स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। चलो जी, अब और न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ, अच्छा, अब इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे उसको। जो ये बल्बो यूरिथल ग्लैंड का पता लग गया। अच्छा, जो पेनिस पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है जी, जो रिंग लाइक फॉर्म में आपको दिखाया गया है, ये जो टिश्यूज हैं बेटा, ठीक है, ये जो टिश्यूज हैं यहाँ पर प्रेजेंट, इनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज। स्पॉन्जी टिश्यूज कहा जा सकता है इनको, ठीक है, बिकॉज जैसे ही इन टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जैसे ही इन टिश्यूज के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ती है, तभी ये जो टिश्यूज क्या हो जाते हैं, स्वेल लाइक हो जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि इनकी लेंथ भी बढ़ जाती है इन टिश्यूज की, और इन टिश्यूज की विड्थ भी बढ़ जाती है, विच लीड्स टू द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। जिसके साथ जो पेनिस है उसका साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस।
कि जो पीनिस है वो इरेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इरेक्शन ऑफ पीनिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल एक्ट and for the passage of sperms to the female reproductive tract. ओके okay. आगे चलते हैं बेटा, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगली बात है वो क्या चीज है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से आई होप जितना हमने अब तक किया है वो आपको पता लग गया है, हर एक चीज का फंक्शन भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। जो मेन फंक्शन है वो याद रखने वाला कौन सा है हमारे पास, सबसे पहले तो टेस्टिस का हमें पता ही है, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, एपिडिडाइमस स्पर्म स्टोर करेगा, वास्ट एफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा। सेमिनल वेसिकल्स क्या का काम है, सेमिनल वेसिकल्स करेंगे जी जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किया उसको मैच्योर कराने में हेल्प करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल दोनों का क्या काम है कि जो स्पर्म्स आए हैं उनको मैच्योर कराना, साथ के साथ ही फ्रक्टोज जो है वो ऐड कर देना स्पर्म्स के अंदर। उसके बाद बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है, लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइजिंग द यूरेथ्रा, ताकि जो स्पर्म है वो इजिली फ्लोट कर सके यूरेथ्रा ट्यूब के अंदर। तो दिस इज द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्रॉटम, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टिस की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की जो बेसिक लेंथ होती है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ होती है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द टेस्टिस। जो पहले लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस से इंटरनल लेयर जो है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है, अब ये सेकंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर बहुत सारे फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस सेप्टा, ठीक है जी। फाइब्रस फाइब्रस यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है बिकॉज ये जो सेप्टास आर बेसिकली प्रोटीन डिविजन्स। फाइब्रस प्रोटीन है, सेप्टास, सेप्टा का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो सेपरेट करती है, इसको सेपरेट करती है वो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, सेप्टा की लोब्यूल्स क्रिएट करता है, क्या है बेटा, ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसके अंदर वाली लेयर, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनसाइड बहुत सारे आप कह सकते हैं कि कॉलम्स बने हुए हैं, बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स को डिवाइड कौन कर रहा है आपस में, सेप्टास डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम लोग नाम देते हैं लोब्यूल्स, लोब्यूल्स नाम दिया जाता है बेटा। हर एक टेस्टिस के अंदर देयर आर 2 टेस्टिस ऑफ कोर्स, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है जी। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। और बेटा इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी हो सकती हैं जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, ओके वी हैव अ क्वेरी, ओके। सो बेटा जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है जी, वो 1 से 3 होती हैं, 1 से 3 मतलब कि 1 2 3, इन 3 नंबर में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है जी। नाउ अगली बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है। अब तक हम क्या देख रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर के अंदर बहुत सारे कॉलम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बेटा ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर की बात नहीं कर रहे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर के इंटीरियर साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। और एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कि 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट है. दैट मींस द स्पेस बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच वाली जो स्पेस है, दिस इज नोन एज इंटरस्टेशियल स्पेस. ठीक है जी. और इस इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड साथ में लेडिग सेल्स. लेडिग सेल्स को हम लोग इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं बेटा. ठीक है जी. बेटा जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो, ये कनेक्टेड होती हैं रेटे टेस्टिस के साथ. रेटे टेस्टिस के साथ कनेक्टेड होती हैं. और रेटे टेस्टिस अगेन कनेक्टेड किसके साथ होती है? एपिडिडाइमस के साथ कनेक्टेड होती है. ठीक है, एपिडिडाइमस के साथ कनेक्टेड होती है. तो ये इस चीज को आपने अगर याद करना हो ना बेटा, तो इस पैराग्राफ के फॉर्म में तो ये कभी भी याद नहीं होगा आपको. आपने क्या करना है, मैं आपको मेथड बता देता हूं कि आप सबसे पहले शुरू कर दीजिए ट्यूनिका वेज, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लीजिए इसको. ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट लेयर, उसके नीचे कैरो बनाइए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके नीचे कैरो बनाइए फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट है. ठीक है, उसके नीचे एरो बनाइए बेटा कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. और ये सेप्टास ही क्या कर रहे हैं? ये सेप्टास ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो बना रहे हैं. ठीक है जी. अगली चीज क्या है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और लोब्यूल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं? उसके अंदर प्रेजेंट है ब्लड वेसल एंड लेडिग सेल्स. ठीक है. अच्छा, अब ये बात यहाँ खत्म हो जाती है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो बना रहे हैं वो किसको सप्लाई करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने जो बनाया वो किसको सप्लाई करेंगे? रेटे टेस्टिस को. रेटे टेस्टिस के पास जो आया वो किसको सप्लाई करेंगे? एपिडिडाइमस को. एपिडिडाइमस के पास जो स्पर्म्स आए हैं वो किसको देगा? वास डेफरेंस को देगा. अब ये सारा कुछ बोलने का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए कि जी जो स्पर्म प्रोडक्शन होनी है वो बेसिकली कहाँ हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है. ठीक है. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लेडिक सेल्स हैं एंड जो ब्लड वेसल्स हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं स्पर्म्स उनको. ठीक है. जो स्पर्म्स बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो कहाँ जाएंगे? रेटे टेस्टिस के अंदर. एंड रेटे टेस्टिस से वो कहाँ मूव करेंगे? एपिडिडाइमस के अंदर. एपिडिडाइमस से वो कहाँ जाएंगे? वास डेफरेंस के अंदर. वास डेफरेंस से वो कहाँ मूव करेंगे? सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बोयूरेथ्रल, फिर यूरेथ्रा एंड देन आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है जी. ये बेटा फ्लो चार्ट के फॉर्म में जब तक आप नहीं लिखते ना आपको याद नहीं होगा. सो मेरी एडवाइस है आपसे कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको याद करना है आपको. ठीक है जी. चलिए जी, अब अगली बात करते हैं हम लोग. इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ आगे. एक मिनट दीजिए मुझे. तो अब हम अगली बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में. तो बेटा जैसे प्लांट्स के अंदर हमने देखा था ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी चीजें हैं. यहाँ पर हमारे पास जो चीजें प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. ये पूरा डायग्राम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है बेटा. ठीक है जी. पूरा डायग्राम ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ही है. ओके. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ने ही स्पर्मेटोजोआ बना करके देना है. स्पर्मेटोजोआ इज द इमैच्योर स्पर्म. इमैच्योर स्पर्म क्या है? स्पर्मेटोजोआ. अब अगली बात करते हैं. जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये कैसे बनी होती है इसके बारे में देखते हैं बेटा एक बार यहाँ पर. ओके. तो जो बेटा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो पहली लेयर है वो आती है क्यूबिकल सेल्स की. पहली लेयर किसकी है? क्यूबिकल सेल्स की. इन क्यूबिकल सेल्स के अंदर जब डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगी तो बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया इज अ स्ट्रक्चर जो कि इमेच्योर स्पर्म ही है. ठीक है जी. मतलब कि स्पर्म बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्टाइल होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल होता है. जो ये मैंने अभी आपको नाम बताया स्पर्मेटोगोनिया,
ठीक है जी। इसके अंदर नो डाउट मेल डीएनए तो प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, अब आपको डिफरेंस पता लग गया स्पर्म्स के अंदर एंड स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। ओके, सो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है जी, पहले लेयर थे क्यूबिकल सेल्स की, किसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि कहां प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, क्यूबिकल सेल्स के आगे कौन सी लेयर है, पॉलीहेड्रल सेल्स की, पॉलीहेड्रल सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है जी, जो ये पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं बेटा, पॉलीहेड्रल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इनसे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं इनसे, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दैट इज क्यूबिकल सेल्स, क्यूबिकल सेल की जो लेयर है, ठीक है जी, क्यूबिकल सेल से आगे कौन से सेल्स बनेंगे, पॉलीहेड्रल सेल्स बनेंगे, विच मीन्स आई एम सेइंग दैट स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होगी तब स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, अब ये बात आप लोग साथ के साथ, अगर आपके पास कोई रफ नोटबुक प्रेजेंट है तो आप लिख भी सकते हैं बेटा। ठीक है, इस बात को अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्पर्मेटोगोनिया से कौन सा सेल बनेगा, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और बेटा जो ये स्पर्मेटोसाइट होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब डिवीजन होगी तब बनेंगे स्पर्मेटिड्स। कौन से सेल्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर होंगे तो बनेंगे स्पर्मेटोजोन्स। तब क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोन्स बनेंगे। अगेन सुनिए, हम बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का है, सबसे बाहर वाली लेयर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कौन सी है, क्यूबिकल सेल्स की। क्यूबिकल सेल्स से कौन से सेल्स बनते हैं, पॉलीहेड्रल सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्यूबिकल सेल्स कौन से सेल्स बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब डिवीजन होती है तब कौन से सेल्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स। Next point, spermatocytes divides to form spermatids and spermatids matures to form spermatozoon. ठीक है, चार चार तरह की बात कर ली बेटा, चार तरह के सेल्स हैं। सबसे बेसिक सेल कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन से बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जब मैच्योर होगा, अब याद रखना स्पर्मेटिड में डिवीजन नहीं हो रही है, स्पर्मेटिड में मैच्योरेशन हो रही है। स्पर्मेटिड जब मैच्योर होगा तब बनाएगा स्पर्मेटोजोन। ठीक है जी, तो ये था बेटा सिंपल प्रोसेस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बता दिया। ठीक है, अच्छा इसको ना इस डायग्राम के थ्रू समझना जरा, जो ये डायग्राम लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है जी, जो लेफ्ट साइड के ऊपर डायग्राम प्रेजेंट है वहां से समझेंगे इस चीज को। एक्चुअली दिस डायग्राम डील्स विद द प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, के जो स्पर्म है वो बनते कैसे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड नाउ up to now we know that sperms are produced inside the testis। टेस्टिस के अंदर कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंड अभी हमने कौन सी कहानी सुनी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ही सुनी है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो कहानी अभी मैंने सुनी है उससे मिलती जुलती कहानी किसकी होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की होगी। चलिए जी, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बेटा, इसके अंदर हमारे पास फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर आता है बेटा ग्रोथ फेज, एंड फिर आता है मैच्योरेशन फेज। चलिए समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले तो हमारे पास आप देखिए सबसे टॉप के ऊपर जो सेल प्रेजेंट है उस सेल का क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनियम। ये वही स्पर्मेटोगोनिया है जो क्यूबिकल सेल्स ने बनाया है। ठीक है, क्यूबिकल सेल्स कौन सी लेयर थी, ये लेयर थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है। वेरी गुड, अब यहां तक हमको पता लग गया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब माइटोसिस होगी तो दो सेल्स बन रही हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हो रही है बेटा, डिवीजन हो रही है, माइटोसिस डिवीजन हो रही है। ओके, दो तरह के सेल्स बन रहे हैं और दोनों ही सेल्स का क्या नाम है बेटा हमारे पास, स्पर्मेटोगोनियम, डॉटर सेल्स। ठीक है, डॉटर सेल्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, जिनमें से एक सेल तो स्पर्मेटोगोनियम बनकर ही रह जाएगा और जो दूसरा डॉटर सेल है
जो दूसरा डॉटर सेल है उसके जो दूसरा डॉटर सेल है वो मैच्योर होगा टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो मैच्योर होगा टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब याद रखना वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि स्पर्मेटोगोनियम से कौन से सेल्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही हो रहा है बेटा। ठीक है, जो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगी। एंड वी नो दैट मियोसिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन and second one is reductional division. So in case of first division there are 2 daughter cell formation। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं secondary spermatocytes जो 2 बने हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ मियोसिस। सेकेंड राउंड ऑफ मियोसिस के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये 4 स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर होंगे तब ये बनाएंगे 4 स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोन्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 4 स्पर्म सेल्स बना देंगे आगे। तो बेटा दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कहां पर हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। वहां पर क्यूबिकल सेल्स प्रेजेंट हैं पहली लेयर में। उन्होंने कौन से क्यूबिकल लेयर के अंदर कौन से सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस डिवीजन होती है, तब क्या बनते हैं, 2 स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, जिनमें से एक तो एज इट इज रह जाएगा, दूसरा पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। पार्टिसिपेशन से पहले उसके अंदर मैच्योरेशन होगी और वो डेवलप होगा टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होती है और क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो 2 होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ डिवीजन होगा, क्या बनेंगे, 4 spermatids, and these 4 spermatids mature to form 4 sperm cells. This is the short and very detailed method of spermatogenesis. ठीक है जी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस डायग्राम के थ्रू। अगर ये डायग्राम आपको आता है आप स्पर्मेटोजेनेसिस बड़े आराम से कर लोगे। और अगर आप बैठ गए इसको, हाँ कि मैंने याद करना है ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, रट्टे लगाने हैं इसके, फिर नहीं होने वाला बेटा ये। ठीक है, उस केस में मुश्किल हो जाएगी। जितने इस चैप्टर को याद करने का एक ही मंत्र है, फ्लो चार्ट बनाते जाओ बेटा साथ के साथ। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही था। इसके जो डिटेल्ड प्रोसेसेस हैं हर एक फेज का वो मैं कल बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर बेटा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए प्लीज, मैं साथ के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।